बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ किताब की मैथमेटिक्स की बुक के हम अभी तक 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 9th चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। Introduction. In year 1637, the French philosopher and mathematician René Descartes established a landmark in the field of mathematics when his book La Geometrique was published. In this book, he showed the connection between algebra and geometry. By establishing this relationship, he was able to study geometric figures by examining various equations which represent the figures. Coordinate geometry, the study of geometric properties of figures by study of their equations, is called coordinate or analytic geometry. We know that a plane is divided into 4 quadrants by 2 perpendicular lines called the axis intersecting at origin. We have also seen that there is a one-to-one correspondence between the points of the plane and the order pairs in. Distance formula between 2 points in the Cartesian plane. To find the distance between the 2 points in a plane, we first see how to determine distance between the 2 points on a real line. Suppose we are given 2 distinct points A and B on the real line, then the directed distance from A to B is B minus A. The directed distance from B to A is A minus B. The distance between A and B is A minus B absolute or B minus A absolute. In the given figure, we note that B is to the right of A. The directed distance from A to B moving to the right is positive. Moreover, A to the left of B, the directed distance from B to the A moving to the left is negative. The distance between 2 points on the real line can never be negative. So that's why we take absolute sign with the distance. Distance between 2 points on the real line, the distance d between the 2 points x1 and x2 on the real line is given by d is equal to x2 minus x1 absolute, or this is equal to x2 minus x1 square ka under the root. It is important to note that the order of subtraction with x1 and x2 does not matter in finding the distance between them, since x2 minus x1 absolute is equal to x1 minus x2, and x2 minus x1 square is equal to x1 minus x2 whole square. Finding distance on the real line. Determine the distance between minus 3 and 4 on the real line. What is the directed distance from minus 3 to 4 and from 4 to minus 3? Now we have to find the distance from minus 3 to 4 and 4 to minus 3. The distance between minus 3 and 4 is given by 4 minus 3. This is equal to 7, or minus 3 minus 4 is equal to minus 7 absolute is equal to 7. In both the cases we have distance 7. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, उसके बाद the directed distance from 4 to minus 3 is equal to this one. Now we establish the distance formula between 2 points in a Cartesian coordinate plane. Distance between the 2 points in a plane. Suppose we are given 2 points on the same horizontal line or the same vertical line in the plane, then the distance between them is the distance between their x coordinates or y coordinates respectively. Thus the distance between p x1 y1 and q x2 y2 is equal to x2 minus x1. अब देखें, ये आपके पास q आ गया, उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया, p आ गया. अब ये दोनों का जो है वो x चेंज हो रहा है, लेकिन y उनका सेम है. ठीक है, y उनका चेंज नहीं हो रहा, तो सिर्फ उसने ये डिस्टेंस फाइंड करना है. तो उसके लिए उसने क्या किया, p का x लिया और q का x लिया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके पास डिस्टेंस आ गया. ठीक है, अब सिमिलरली ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है. अब इसका जो है वो आपके पास y चेंज नहीं हो रहा, y उसे क्या कहते हैं, सॉरी x चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो रहा है, तो y2 माइनस y1 करेगा तो आपके पास डिस्टेंस आएगा. थस द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 and
qx2y2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब इसने y क्यों नहीं लिया, क्योंकि y इसका और इसका दोनों का y जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड r x1 y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इसने x क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों का x क्या है, सेम है। अब देखें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 7 एंड 3। अब देखें इसका ये और ये दोनों सेम है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, 7 माइनस 2 आपके पास ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 5 डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 4 और 6 एंड 4 और माइनस 9, तो ये आपके पास ये और ये सेम है, तो आपके पास कैसे डिस्टेंस आएगा, -9 माइनस 6, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास -15 का एब्सोल्यूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ये इसने वही उसी तरीके से ये सारा ड्रा करके फिर फाइंड किया है। डेरिवेशन ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला in a coordinate plane, the distance d between the 2 points x1 and y1 and x2 y2 is given by the following formula। तो आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, d is equal to अंडर द रूट y2 माइनस y1 का स्केयर और प्लस x2 माइनस x1 का स्केयर, इस तरह लिख लें, या आप इसको इस तरह लिख लें, पहले x को लिख लें, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। 2 पॉइंट्स आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हो, उनके दरमियान आपने फाइंड करना हो डिस्टेंस, तो आप एक को x1 और x2 का नाम दे दें, एक को x1 और y1 का नाम दे दें, दूसरे को x2 और y2 का नाम दे दें, उनके दरमियान इस तरह ये फार्मूला अप्लाई करें, तो आपके पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। अब इस फार्मूले का इसने प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ये एक पॉइंट है P1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ये पॉइंट है P2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास x1 आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या आ गया, x2 आ गया, तो ये डिस्टेंस आपके पास कितनी, ये दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ये आपके पास ये P1 है और ये आपके पास क्या है, P2 है। ये आपके पास x1 और y1 आ गया और ये आपके पास x2 और y2 आ गया, ठीक है। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये x1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या आ गया, x2 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास आ गया जी y2, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास y1 है। अब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये y2 माइनस y1 बन जाएगी। ये y1 निकाल देंगे y2 से, तो ये आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये x2 से x1 निकाल लेंगे, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है अननोन डिस्टेंस P1 और P2 का डिस्टेंस, अब ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, P1 और P2 का स्क्वायर आ गया, तो बेस आपके पास कितनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, और ये आपके पास ये जगह कितनी है, ये आपके पास आ गई है जी y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिर्फ हमें P1 और P2 चाहिए, P1 और P2 का स्क्वायर हमें ज़रूरत नहीं है, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। P1 और P2 का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप दो पॉइंट जो आपको गिवन हो उनके दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को फर्दर उसने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो बस सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखें एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए दिस वन बी दिस वन। अब ए पॉइंट है आपके पास -5 और 1, और बी पॉइंट है आपके पास 3 और 1। अब इसको आप कह दें x1 और y1,
और इसको आप कह दें x2 और y2, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है a और b के दरमियान डिस्टेंस, वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब x2 आपके पास कितना है, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 का स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगा। तो ये 8 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 8 ए बी इज इक्वल टू 8। तो इसके दरमियान डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, किस तरह सॉल्व कर सकते थे, देखें ये और ये सेम है, ये चेंज नहीं होते, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते थे आप फाइंड कर सकते 3 माइनस 5, तो ये आपके पास हो जाता 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, डायरेक्ट भी आप इसको फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, देखें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, इसको देखते हैं। अब प्लॉट द पॉइंट्स -3 एंड 7, 5 और 9। अब ये प्लॉट कर देने आपको ने पॉइंट्स, अब एक आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और दूसरा आपके पास किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो एक को आप x1 और y1 कह दें, ठीक है। x1 और y1 आपके पास क्या आ गए, -3 और 7 आ गए, और x2 और y2 आपके पास क्या आ गए, 5 माइनस 9। किसी को भी आप x1 कह सकते हैं, किसी को भी आप x2 कह सकते हैं, इससे आपके आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसका स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस d जो है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, -5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 64 प्लस 4, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 68 आपके पास आ गया। तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 68, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 17, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 68 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है। तो अंडर रूट 68 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17। तो ये 2 दो दफ़ा है तो ये अंडर रूट से निकल आएगा, 2 अंडर रूट 17, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एग्जांपल है। अब वो आपके पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर इज, अब ये देखें ये आपके पास ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये आपके पास क्या आ गया, साउथ आ गया। अ हेलीकॉप्टर इज लोकेटेड 1 माइल वेस्ट। अब 1 माइल ये क्या है, वेस्ट पे, और 3 माइल्स नॉर्थ पे, 3 माइल, ये 1 आ गया, 1 2 3। तो इस जगह पे हेलीकॉप्टर है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये इस जगह पे हेलीकॉप्टर है 1 और 3 पे। ऑफ द कंपाउंड सेंटर मस्ट रिस्पॉन्ड टू एन इमरजेंसी लोकेटेड 7 माइल्स वेस्ट। अब 7 माइल वेस्ट किधर आ जाएगी, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है। पहले हेलीकॉप्टर किधर था, 1 यूनिट इधर था और 3 यूनिट इधर, ये इस जगह पे हेलीकॉप्टर था 1 और 3 पे, ये उसकी लोकेशन थी हेलीकॉप्टर की। फिर उसके बाद उसने रिस्पॉन्ड करना है 7 माइल्स वेस्ट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर कहीं आ जाएगा 7, और 11 माइल्स नॉर्थ। तो 11 इस तरह आप गिने, ये 11, ठीक है, 7 और 11, ये इधर आपके पास 7 और 11 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये दरमियानी फासला हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ गया x1 और y1, और ये आपके पास क्या आ गया, x2
और y2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये d डिस्टेंस, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। तो अब ये दरमियानी फासला हमने फाइंड करना है, तो ये सारा, ये भी माइल्स, सारा कुछ माइल्स में है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हमारे पास माइल्स में आ जाएगा। तो x2 आपके पास कितना है, 7 माइनस 1 का स्केयर प्लस y2 आपके पास कितना है, 11 माइनस 3 का स्केयर, तो होल अंडर द रूट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, 36 प्लस 64, ये 100 हो गया। 100 का अंडर रूट कितना आता है, 10 आता है। तो आप 10 माइल्स दूर हैं, द हेलीकॉप्टर मस्ट ट्रेवल 10 माइल्स टू गेट द इमरजेंसी साइड। तो उसको कितना ट्रेवल करना है, उसने 10 माइल्स ट्रेवल करना है, d इज इक्वल टू 10 माइल्स उसने कवर करने इमरजेंसी साइड पे। ये उसकी लोकेशन थी, 1 वेस्ट पे और 3 नॉर्थ पे, ये इसकी लोकेशन है। उसने पहुंचना किधर है, 7 वेस्ट पे और 11 नॉर्थ पे। तो वो कह रहा है कि वो कितना उसका फासला है, उस जो मौजूद है जिस जगह पे और जिस जगह उसने पहुंचना है, तो उसके दरमियान फासला कितना है, 10 माइल्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी क्या चीज़ है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आ गई है 9.1। तो ये फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑफ ए बी इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये आपके पास कितनी लेंथ आ जाएगी, ए बी की, तो 4 माइनस 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, 4, ये 4 लेंथ आ जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपने कैसे फाइंड करनी है, ए बी, ये पहले की लेंथ आ गई, ठीक है। ये दूसरे की लेंथ फाइंड करते हैं। तो दूसरे की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, ए बी की लेंथ आपके पास हो जाएगी 0 माइनस माइनस 2, तो ये आपके पास 2 आ गई, ठीक है। इस तरह थर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2, तो ये आपके पास 3 आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लेंथ आपके पास 4 की लेंथ क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 4 की लेंथ -2 माइनस 7, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, -2 प्लस 7, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की लेंथ देखते हैं 5 की, तो 2 माइनस 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3, तो ये आपके पास 5 आ गई। इसी तरह 6 की लेंथ देखते हैं। 6 की लेंथ आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस 1, तो 1 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सिमिलरली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो एक पेयर आपके पास 1 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 1 1 और 3 और 3, इसको आप x1 y1 कह दें, इसको आप x2 और y2 कह दें। डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर आ गया आपके पास। तो इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 का स्केयर प्लस 3 माइनस 1 का स्केयर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 अंडर द रूट, तो ये क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 आ गया, तो ये 2 है, ये अंडर रूट से एक बाहर निकल आएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया पहले का, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, ये आपके पास 1 और 2 है और 4 और 5 है। ये आपके पास x1 और y1 आ गया और ये आपके पास x2 और y2 आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, x2 आपके पास क्या है, 4 माइनस 1 का स्केयर प्लस 5 माइनस 2 का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, तो ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। 18 यू कैन राइट इट 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 6 इंटू 3 18 आपके पास बन गया, तो ये एक निकल आएगा बाहर, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें, ये आपके पास 2 और -2 है, और दूसरा पॉइंट 2 और -3 है। इसको आप कह दें x1 और y1, और इसको आप कह दें x2 और y2। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x2 आपके पास कितना है, 2 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट प्लस -3 माइनस -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस -3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 0 -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1 डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, ये और ये चेंज नहीं हो रहे, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, -3 माइनस -2, तो ये आपके पास -3 + 2 = 1, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, सिमिलरली ये नेक्स्ट देखते हैं जी। ये नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। तो ये आपके पास 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 3 और -5 और 5 और -7 आपके पास, ये x1 और y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो x2 आपके पास कितना है, x2 आपके पास 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -7 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये -7 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 8, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2√2 आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसने आपको पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट O0, ठीक है, एक पॉइंट A है 3 और 4, एक पॉइंट B है -5 और 12, ठीक है, और एक पॉइंट C है आपके पास 5 और -8, और D पॉइंट है आपके पास 11 और -3, और E पॉइंट है आपके पास -9 और -4। ठीक है, अब आपने OA फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, OA। O के कोऑर्डिनेट्स लिखें 0 और 0, ये O के कोऑर्डिनेट्स आ गए, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास 3 और 4। इसको आप x1 और y1 कह दें, इसको आप x2 और y2 कह दें। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है किसके बराबर है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 9 + 16 अंडर रूट, ये 25 अंडर द रूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। सिमिलरली इसी तरह आप OB भी फाइंड कर सकते हैं, OB फाइंड करना है आपने। ठीक है, अब O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और 0, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 12, इसको आप x1 और y1 कह दें, इसको आप x2 और y2 कह दें। ठीक है,
अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू आपको पता है किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 ना सॉरी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये आपके पास -5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। तो 169 जब आपके पास आएगा ये, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये भी फाइंड कर सकते हैं, 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 ये भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक को आप x1 कह दें, y1 कह दें, दूसरे को आप x2 और y2 कह दें। इसी तरह आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, बीच में वैल्यूज पुट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को 9.2 को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है।